यूँ इसको लगा दूँ फिर भी बाद में लगा दें। बाद में लगा Lani pamadang tu kurcestabo Ram chikpelus pang kursabidu La 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 la
Machupo inzete puches midu Nganyam shu inzete tarsamidu Machupo inzete puches midu Nganyam shu inzete tarsamidu Lani chos gali dunulali sona Tagyot pas istipan pamiru Lani chos gali dunulali sona Tagyot pas istipan pamiru La 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 Om chung chung mani panehu Kadak pichus las kyap sucheo Om chung chung mani panehu Katali Ram chipolo chagosu Lani chima velam kathalindu Ram chipolo se chagosu La 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 se chagosu Tang pongas ke zana rang chik poske Nis pangashi zana chik poshigos Tang pongas ke zana chiang chik poske Nis pangashi zane chik poshigo Lani chima velam katha Chima velam katha lindu Ram chik polok se chagodu La 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 멈추 이거죠. Dili ya jule yangune skabje chogoning mo chile anging takpane ngaja changme chos ning takpane ngone tukchi chijuat youtube chigrang ring mo chile taksaradas la pepse skapsu ngata taksarang I ngata le restaurant jigi na ring mo chile yang spa jiga
nga yon bola rakpin na zo yang spaji nga chen bol musuin jinang aga shots te thu te ga nga banjik zom te pin tena nang yampo tene rimbo chele yang testing ne kino lasko te dang rimbo chele lost te peps te dukpin nga zanskara rimbo chele skot kan bo ina video ne ga gyusong tene rimbo chele nga kan dang chab yuwa chab lebin jinang rimbo chele gadi aga ne chap charuk tenge sam rimbo chele ika juk stot me da he sam rimbo chele dang chap zanskar ne leba jato tene rimbo chele juju rimbo chele ken ripchik ngaji tugun ne parla skot mithu ba juspa tene rimbo chele daksa chachinga langa phone wa rakpin inna sui nga tika yung nal demo chama no sunga chezena rimbo chele tyo sunga rakpin कि तसा निजे जिंदा डुलिन होते नो गेशे लागदो ले जिंदा डुलिन होते नो ते गेशे लागदो ले जिंदा डुलकान बो यांस पास हलिन त्यो मुलाक बिल मुछले ग्यावरिंग मुछले 50% बो निजे ओतेने का युक्स होते नो सुंचो सालिन होते नो ते जुंग बेना योंगा देमो छमानो सुंगा रखबेन तेंगे रिंग मुछले चाची उथुक तांसे मुझे जुजु स्क्योत जुस पासंग ते दिरिंग चा फोन याच बोरिंग मुछले योंगन पर यांस पास योंगन हे खोरा योंगन हे मोला रखबेन तेने तेनंग थुना माजेर हे सुंगा रखबेन चजना nijang healing sachenok tene yang jokes demo metkan so siring bochela chorarag molak ina zui formal iskot na tenna zui nga yang spa yong in he sungarak tengi tenna zui sangma mashada jigme dang phone jik taspin jigme chik chana ring bochela iskot ara he tenang yang skotches chana thuna ina zui mazer tene philoga khya chap gunjan buza chara chipone ring boche chap skot skot jinanga zerna dig jaspin tenenge jupega zerna dig jaspin ring boche yale Vale. Tene tene rimbo chele dimba ya izam nyamshung jukstot rimbo chele flowering dar me pya ta rimbo chele umma katin chan jukstot diring ija changmai ka lep te geshe lagdor ga sungchos nenat na ngata phan thokset na yo rimbo che skutin mane je ches me chesana rimbo chele nga malap ta nga na ngara thopa zago changma chun jane nga ya daily sel jane te ringbo chele nyampo taksa ladas pa changma ringbo chele nyampo nyemo kyak pa taksa juno nangma nyemong dugala ringbo chele bar chandigarh jammu phepsin juksat pa te na chokshe ngang ringbo chele nyampo juju nga sode sora ringbo chele nyampo nga speradang che scaps thobat pin te nete jane ringbo chele jaksik nistong guina tyo sunga rakpin geshe dorje damdule tibet house la deputy director la khong phepste dupin tezane ringbochele molapin khirang gesele jala song he jinjinang tinenga tinna ringbochele nang gesel damdule ma nyemono dharamsala lobjong nyampo jatkane no tendang gesel konjong dulang nyampo ringbochele dharamsala jukste no tene tezane tene nga gesel damdule jala chazane gesel damdule izam chams ningje chanhala tezam gyala juksa dupin tene khoi english kun nyana chipone tezane halishes sor tene tena cholanga tene ringbo chele katinla nga tibet house da chajis scarps to tene tenna nga nyampo thu mangpo ji scarps to tenna thu mangpo diring lo churuk chupdun songs teno tene malab ngade tikpa gyacho sola ten thu mangpo jik te nampo changma thuste no diring ija changmang ika lepches flowering dharma chukches ringbochele izam chun spera ne falanga tezane shartukpin sperna geshe damdulle ngai bodwiara juspin bodwiara juzane ringbochele tyo sunga pin poneka khataks nyo chagospa khataks pong rai ngala chikchi jingbe ka score teni pigme ka lep duga lewa mi ruk jinjina sungdupin ta tezam detail na nga suzana nga gyusang lekpin daksa nga ta bazala chazane nga khataks pongi nam yozana nge pigme ka thukte maninge mane yamit sperna tenna chola samshik chunjik ne phala jesa sperna ngata ringbochele chanjik joda do gesele chanjik joda do sperna his eminence skabje zerpa ringbochele tong sotpen skabje nang his eminence sokseno ya skabje tong ya his eminence tong jang sung dupin tate jane chuni no pa ten te details hame gane diring ngarang nga chalo kazuk shik jikstene ga chorbe ya nyamyung jiksakste nyunji ga yodna त्यो ringbochele metpina tan mane yan jes metpin tene gesel ringbochele ati mane kadin chele te ringbochele jaksik te angsunga rakpin ole te ringbochele te angsung pe jaksik yang jaksik lo khachik ne
gishi konjo andu le jala song sinjina nga gishi konjo andu le jala song ben jaksi rinpoche song ben samdong rinpoche le ju sinjina ngi samdong rinpoche la nga ju chesa scarps to tene rinpoche le yang jaksi youtube chik tuktan jinpa skola mola rakpin tena chola lamstone mane bar salin yo tene rinpoche le ngadang changmel dun lang mosma phepsias pa rinpoche le mane katin che tene rinpoche la ngi juain rinpoche le siksum ngaje tugu ne pe yang labje kazuk singaja ngingpa na sas konsumu junu najik labja sub sala jane rinpoche Berapa penguji yang Hindi singkat lagi. Ada di sini. Ale. Ini jalan sini. वैसे Also, किसी रिमोट में माफ करना मैं अभी पूरा लद्दाखी में बोल गया मैं थोड़ा ना रिमोट के बगल में बैठा हूँ भूल गया तो रिमोट जी बहुत अच्छा आप सबको बताया हिंदी में बहुत अच्छे हैं तो रिमोट जी आपसे निवेदन करते हैं आप हिंदी में थोड़ा सा हमें रास्ता थोड़ा दिखाई चल रहा है हेलो हसन चल रहा है दोनों दिन लगा मैं तो करता हूँ मैं अब मत कर बस एक चीज हेलो हसन ले यार ले अनेक संग में संग ले ने फ्लोरिंग डाल में गिशे ये संदूक ले ने फ्लोरिंग डाल में सो यार ले ने गवर्नमेंट ले लिंक से लगा ने जिन्हें यजा ये खाचाने जिन्हें सांगमा ले अने मिसेले तने ये दूसरी काला केशल लाभ तो कुंडे ने अने छापे चला जैसे अने यजा लास्ट नती अने यूनिफॉर्मो मैंने डांस के लिए दूसरे दिन पर आने तुरंत ये सचिस पे यजा यूनिफॉर्म नो अने सोंपा सांगमा ला ले मामा को कैसे डिलीवरी डाले ताकि तासा गेले से मोला से तो पतने गागा से मोला से पासा नि तांगे सिक्सिंग जे हिंदी ना जुना जुस्ताले जन द डेमोन्स्ट्रेशंस ले तंगिना ले कोन खाक चे ना जुस्ते पासा तो सबसे पहले आपने जैसे बोलना शुरू किया ना हाँ बारिश भी हो गई कुछ ना अप्रैल है हमारे लिए हाँ जी वाकई बारिश हाँ जी अच्छा हो जाएगा अन्य का स्पीकर कनेक्ट कर लो चलो तो मैं अभी थोड़ी देर पहले जब हम आ रहे थे ये ज़्यादा ठीक है मेरे लिए तो ये अच्छा है साफ है आवाज़ अच्छा है बहुत अच्छा है जी कैसे बना ऐसा दिन मरो दिन दे ऐसे ऐसे हेलो कैसा ले अच्छा जैसे अभी हम आ रहे थे ना तो मैं ये बोल रहा था गाड़ी में जो कि आजकल परम पावन दलाई लामा जी यहाँ अपने लद्दाख में विराजमान हैं और ये हम सब के बड़े सौभाग्य हैं और ऐसे समय में इस बार के आपके यहाँ जो शिविर जो है कि ऐसे समय में फ्लोरिंग दारमा द्वारा जो कि यहाँ आयोजन करना और वो भी यहाँ ठीक से मठ के समक्ष वही मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि हमारे में जैसे लद्दाखी में या जो बूटी भाषा में ऐसी कहावत होती है कि सोनम के चौक माचौक बोल के ना जो पुण्य जो आपके हैं संस्कार में कर्म में तो पुण्य तो है लेकिन वो पुण्य जो कि उसमें बल है कि नहीं है
उस चीज़ को उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। परम पावन दलाई लामा जी इस समय यहाँ विराजमान और इतने दिनों से और इतने दिनों तक हर वर्ष तो सोना को चौक देना पाको आले न्यूज़पेपर चौक देना लेन थुप देना पाका चले। तो बहुत खुशी हुई इस समय, खास करके गेशे लाख के द्वारा जो कि आप अध्ययन कर रहे हैं या सीख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे जितने बच्चे आप यहाँ आए हुए हैं वे वो विषय सीख रहे हैं आप जो सीखे हुए हैं आपने। एक तो होता है आज तक सुना नहीं सीखा नहीं, वो सीखना होता है। लेकिन इस समय जो आप सीख रहे हो यहाँ तो वो सीखे हुए वो विषय आप सीख रहे हो। हाँ, तो यही अपने जैसे लद्दाखी में कहते हैं ना थेस्पा संपा घुम्बा जितेलाले। तो सबसे पहले सुनना, फिर उसके बाद उस पर विचार करना, चिंतन करना, फिर उसे भावना में उतारना, तो वो माध्यम ही है। और जहाँ तक अभी पता चला कि शलादुल्लाह के माध्यम से जो आप सुन रहे हो तो ये चुंजुक बोधिचर्य अवतार के बारे में है। अब बोधिचर्य अवतार जितने हमारे शास्त्र ग्रंथ है उनमें सबसे प्रचलित और सबसे प्रसिद्ध है, ये तो सब जानते हैं। वही बोधिचर्य अवतार एक मात्र ऐसे ग्रंथ है जो सबसे प्रचलित है, सबसे प्रामाणिक है। अपने बोठी भाषा लद्दाखी या तिब्बती भाषा में जो टीका जो लिखे गए हैं बोधिचर्य अवतार का सबसे ज्यादा, और बताते हैं भारतवर्ष में भी सबसे ज्यादा जो टीका जो लिखे गए व्याख्या तो बोधिचर्य अवतार पर सबसे ज्यादा था। अब मुझे पूरी तरह से तो याद नहीं, करीब भारत में भी तिब्बत में भी करीब 200 विद्वानों ने इसके टीका लिखे गए हैं, इतने संख्या में। अब अंग्रेजी में भी है, शायद अंग्रेजी में भी मेरे ख्याल से, मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन अंग्रेजी में भी शायद बोधिचर्य अवतार और मिलारेट्पा के जो गुरु है वो सबसे ज्यादा और सबसे पहला, मतलब एक तरह से तिब्बत में चीन का आक्रमण से पहले का अनुवाद किया हुआ। तो ऐसे है, बहुत सबसे प्रचलित है। फिर परम पावन दलाई लामा जी के भी जो अभ्यास के जो पुस्तक है, ग्रंथ है, वो मूल तो बोधिचर्य अवतार है। और बोधिचर्य अवतार यहाँ केशाला विराजमान है, बैठे हैं यहाँ, आपके वाक्य में बहुत बड़ी बात है। फ्लोरिन दारमा में जो कि लिंग से अपने गगा के को साथ आप लोग कितने सारे लोग हैं, और मैं एक एक का नाम नहीं ले सकते हैं, इतने पूरे तादाद में है। हाँ, और जैसे दिल्ली में भी अभी भी देखे चल रहा है, यहाँ जिंगमेले हैं आप लोग कितने सारे, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कुछ नहीं किया, देखिए जो कुछ अभी गागा ने जो बताया, अब वो सच हो सकता है ना, कुछ कुछ बातें सच इसलिए है कि ऐसा एक बातचीत हो गई। वास्तव में मैंने भी ऐसा कुछ सोच करके इतना कुछ बनेगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अब उम्र में मेरे से आधी है, मेरे से बहुत छोटे हैं, तो फिर वो बातचीत में हो जाता कहता, ये सच है। तो कुछ योजना के तहत जो कि मैंने कुछ बताकर बोलकर ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो मैं खुद जानता हूँ। ये तो आपके विराजमान, आपके बड़प्पन है या आप लोगों के प्यार है, आस्था है, ऐसा कुछ भी नहीं। और ऐसे हमारे जीवन कई दफा आता है ऐसी बातें, आपके जीवन में भी मेरे जीवन में भी, मतलब वो एक उसमें मैंने अपना समय निकाल कर प्रयास कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसी को हम लोग कहते हैं मिलम, एक ऐसे मिल जाना। अगर ये सच है तो फिर ये भी सच है कि आपसे मुझे भी, मैंने भी सीखा या मुझे भी मिला वो चीजें, तो ये है। खैर अब क्या है, अब आप लोग मेरे से बहुत छोटे हो, आधे से आधी उम्र के मान लीजिए, लेकिन जो अभी इस समय आप अध्ययन कर, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं पूछ रहा था आपसे कि सुबह कितने बजे, करीब 5, साढ़े 5, 6 बजे से शुरू कर रहे हैं आप, तो इतने बजे आप शुरू कर रहे हैं, उठ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कहाँ आप तो एक तो ये समय छुट्टी के दिनों के में समय निकाल कर इतने दिनों तक,
और बहुत बड़ी बात, इसे कहते हैं हम लोग हिंदी में जिज्ञासा आपकी है। जिज्ञासा, इच्छा तो होती है सबकी, मैं पढ़ा लिखा बनूं, मैं कुछ जानूं सीखूं, लेकिन वो बन नहीं पाते ना। बन इसलिए नहीं पाते हैं कि कर नहीं पाते हैं। कर इसलिए नहीं पाते कि वो करते नहीं है। इच्छा होती है मगर बनता नहीं है। हाँ, तो ये जिज्ञासा आपकी, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, मैं बहुत बड़ी बात है जिज्ञासा आपकी। और मैं अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था, मैं भी बहुत लेट सोता हूँ, कभी 1-2 बज जाता है देखिए रात को ना। हाँ, आजकल यहाँ तो थोड़ा जल्दी सो जाता हूँ 1 बजे तक, नीचे नहीं तक 2 बज जाता है। अब क्या होता है ना कि 9-10 बजे के बाद अकेला होता है ना, तो ज़्यादा समय मिलता है अकेले का। हाँ, चुप पढ़ने लिखने के बात हो, हंसी मजाक की बात हो, मगर वाकई में फिर सुबह जल्दी उठे तो चलो 6 बजे के आसपास तो जाग जाते हैं, ठीक है। मगर मैंने एक समय ऐसा, मैं बड़ा हैरान होता था कभी कभी, क्योंकि मेरे मतलब पालन पोषण ना बड़े अजीब से माहौल में हुआ है सच कहूँ तो। एक तो आप रिम्पोछे क्या बोलते हैं, एक अवतारी, उसमें हमारे समाज में काफ़ी छूट होते हैं लद्दाखी तिब्बती समाज में ना। और दूसरी बात, जो कोई खास जिम्मेवारी भी नहीं होता है, खास कोई दबाव प्रेशर भी नहीं होता है उसमें। तो धर्मशाला में भी रहा, ये सच है, कहाँ गेशत लाखदुल्ला, कहाँ गेशत मौजूद अब्दुल्ला, ये लोग तो इतने वाकई में मैं उनके साक्षी हूँ कैसे मतलब इन्होंने अध्ययन किया। मैं तो परीक्षा भी नहीं देता था, खाली मदर क्लास में जाता था तो सुनता, पर गुरुओं की कृपा रहा, परम पावन दलाई लामा जी के प्रवचनों का देखिए ये बड़े सौभाग्य रहा। और अपने गुरुओं के धर्मशाला में तो इन्होंने बहुत मेहनत से परिश्रम करके देखिए बने हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं हैरान होता था, कोई सुबह सुबह सवेरे उठता है, ठीक है ना, 4-5 बजे जाग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, निकल आते हैं। देखिए हम जब उठ के कहीं मुंह माँ धो करके निकल आते हैं तो उनका तो काफी कुछ पूजा पाठ तो खत्म है सारा कुछ ऐसा ना। तो ये हर किसी के बस के नहीं है जिस तरह से अभी आप कर रहे हैं ना, और इससे आपको बहुत लाभ होगा, वाकई में बहुत ज्यादा लाभ रहेगा इसका। और ये एक समय होता है युवा अवस्था में। हाँ, जो युवा अवस्था में चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, तो उसमें अगर आप जीवन शैली इस कदर चलो अपने जीवन इस तो आगे बहुत काम का होगा वाकई में, किसी भी क्षेत्र में आप देखिए फिर जीवन सफल है। अब आप शुलू गा रहे थे ना, हाँ, तो देखिए ओम छुम छुम मनवाले ऐसा इतने मतलब जिस सुर में जिस धुन में आपने गाए, अब उसके अर्थ उस जो सुर वो तो है ही है, मगर आपके जिस जिस रिदम के साथ जिस आवाज में आपने देखिए पेश की, हाँ, तो जो जिनको इसके अर्थ ना समझ में रहे हो भाषा के तौर पर, तब वो भी समझ जाए कि इसका अर्थ ऐसा है उस अंदाज में। आप मिताप्पा के बारे में, अनित्य के बारे में, अनित्य के बारे में, क्या कहते हैं, नश्वर के बारे में। हाँ, तो आपने कहा इस संसार में कुछ भी ले जाने का नहीं है, देखिए ना, कुछ भी ले जाने का नहीं है। अकेला देखिए, अकेला अकेलापन, जैसे अकेलापन बोलते हैं ना, देखिए, हाँ, तो अकेलापन को समझना बहुत जरूरी है वाकई में। हम अकेलापन को समझेंगे तो कभी मायूस नहीं रहेगा, परेशान नहीं रहेगा, ये सच है। हाँ हाँ, अकेलापन जो है ना, कई आप तो सारे भाषा, आप पढ़े लिखे बच्चे, आप लोग देखे ना, हर भाषा के अपने लद्दाखी तो है ही है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि सब। देखिए हमारे लद्दाखी बच्चों को तो देखिए कई भाषा होंगे, आप ज्ञानी हो। हाँ, आप तो हिंदी उर्दू को अलग समझ सकते हो, देखिए ना, लद्दाखी बच्चों को तो अंग्रेजी तो है ही, पूरा पकड़ उस भाषा पर आपका। हाँ, तो मिताप्पा के बारे में मैं भी यकीन मानिए, शुरू में मैं क्या सोचता था, जब तक मेरी उम्र थी कोई 17-18 साल तक का, तब तक मैं सोचता था मिताप्पा माने जैसे कोई मर गया तो वो एक मरना ही एक मिताप्पा जैसा, ऐसा सोचता था मैं।
और जैसे ही धर्मशाला पहुंचा गुरुओं से, अब वहाँ दलाई लामा जी के प्रवचनों में और अपने वहाँ इस संस्था के जहाँ से केशरलाल हकदुल्ला के अब्दुल्ला आदि निकले, ठीक है ना। तब जो वहाँ पहुंचा तो जब क्लास में गए तो सुना तो हाँ, और तब समझ में आया जैसे आज अब यहाँ चल रहे हैं, तब समझ आया कि मिताकपा वो मरना ही नहीं है, पल पल जो भीतर है मिताकपा। दलाई लामा जी के प्रवचन में सुना कि जीवन जो है वो सालों में बीत रहा है। 10 साल हुआ, 20 साल हुआ, 60 साल हुआ, 70 हुआ, 90, 100 साल हुआ, सालों से। और साल जो कि महीनों से, 12 महीने में, महीना जो कि दिनों से, दिन जो कि घंटों, घंटा जो कि फिर मिनट से मिनट, सेकंड से, इस तरह से करते करते ऐसे बीत रहा है। तो किचिंग माँ बोलते हैं ना मिताकपा का सिंह, किचिंग माँ। हाँ, फिर कैसे ऐसे ऐसे शब्द है अपने लद्दाखी में भी, सर मसर, जिग माजिक, ऐसे ना शब्द। हाँ, ये सब देखे मिताकपा। हाँ, तो अब तब जाकर ऐसे बड़े बड़े विद्वानों से हम सुनेंगे, समझेंगे, तब जाकर के ना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे याद आ रही है कई बातें ऐसे ना, अब जैसे केशरलाल हकदुल्ला के दोजत अब्दुल्ला, अब हमारे तो एक तरह से कहीं तो मित्र है धार्मिक, मतलब फिर भी उनसे बहुत कुछ मैंने भी सुना, सीखा। देखिए ना, जैसे केशरलाल हकदुल्ला, मैंने केशरलाल हकदुल्ला को सबसे पहले देखा दिल्ली में। जब मैं इनकी संस्था में आया था तो उस समय केशरलाल वहाँ से निकल चुके थे, और दिल्ली में हम गए थे संस्था इंस्टीट्यूट की तरफ से तिब्बत की आज़ादी के लिए हड़ताल करने, ठीक है जी। तो वहाँ हम गए, भूख हड़ताल में बैठे, 2 बार बैठे हम, एक बार तो 24 घंटा, फिर एक बार 48 घंटा। तो जो शुरू के थे शायद उसमें फिर हम लोग, उस ज़माने में क्या होता था कि राजघाट में बैठ सकते थे बाहर तंबू लगा के, फिर इंडिया गेट तक जा सकते थे, राष्ट्रपति भवन के वहाँ कोने तक। तो मुझे याद है इंडिया गेट के वहाँ पर हम लोग पहुँचे, आवाज़ मारते, पुलिस वाले आए, आंसू गैस छोड़ा, ये सब कुछ किया। तो बीच में वहाँ कुछ हमारे भारत के नेता लोग आए, उन्होंने समर्थन में भाषण दिए। तो वहाँ केशरलाल हकदुल्ला टिब्बत हाउस में होते थे। तो केशरलाल हकदुल्ला ने कुछ अंग्रेजी में अनुवाद किया, कि तिब्बती में अनुवाद कुछ ऐसे किया उन्होंने। पहले बार मैंने उनको वहाँ देखा। फिर उसके बाद तो काफ़ी सालों के बाद तो धर्मशाला में फिर दलाई लामा जी के कार्यालय में वहाँ अनुवाद, केशरलाल हकदुल्ला जैसे बहुत कम है जिन्होंने दलाई लामा कार्यालय में जो कि उन्होंने अनुवाद के भी और सचिव के भी काम किया है उन्होंने। हाँ, फिर इनका अंग्रेज भी ही है, हिंदी भी है, ठीक है ना। तो ऐसे करके तो एक दफ़ा केशरलाल हकदुल्ला से मेरी ऐसी बात हुई, तो केशरलाल हकदुल्ला कहते हैं कि दलाई लामा जी के जो प्रवचन है उसके एक अजीब सी शैली है, उसके अलग सा विशेषता। तो विशेषता ये है दलाई लामा जी के प्रवचनों का कि जब दलाई लामा जी के या लद्दाख में बताए हुए या धर्मशाला में या विदेशों में कहे हुए जो प्रवचन है, शुरू में देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा वही बात यहाँ भी कहा उन्होंने, वहाँ भी कहा, जैसा ना वही बात फिर से दोहरा रही। जैसे शुरुआत दलाई लामा जी के प्रवचन जो कि एक जैसा, जब उसके समापन करते हैं दलाई लामा जी, उसके समाप्त करते हैं, जब समापन करते हैं तब अलग अलग दिशा से करते हैं उन्होंने। हाँ, अमूमन तो ऐसे करेंगे ना हम लोग जो यहाँ बोला वही वहाँ बोलेंगे, शुरू जैसे यहाँ के वहाँ भी शुरू ऐसे ही करेंगे। चुनाव में इलेक्शन जो प्रचार करता ना, यहाँ जो भाषण था वो वहाँ भी वही देंगे एक तरह से। तो थोड़ा बहुत मतलब दूसरी बात है माहौल देखते हुए। तो दलाई लामा जी के प्रवचन ऐसे नहीं कहते हैं कि शुरुआत जो कि एक जैसा करेगा, समापन जो कि उसका एक अलग अलग माहौल, एक वातावरण से, ये विशेषता कहते हैं। तो देखिए उनके, हाँ, तो ये है। फिर अभी आप बोधिचर्या अवतार पर अध्ययन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात। देखिए आज आप यहाँ कर रहे हैं, इसके समाप्ति के बाद बीच में पढ़ी है, ठीक है ना जी। और कुछ कुछ श्लोक आपको ऐसा लगे कि हम ये वाकई में सच है। कुछ श्लोक ऐसे हैं शायद जो शब्द से भी प्रभावित होना, कुछ श्लोक ऐसे कि जिस
तवा गुंबद चौपा बोलते हैं ना, कुछ श्लोक दर्शन की दृष्टि से हैं, कुछ श्लोक जो कि आचरण की दृष्टि से हैं, कुछ श्लोक जो कि भावना की दृष्टि से हैं। तो ये हाँ, जैसे अब मैं देखिए आप क्या बताऊं, हमारे जिस तरह से मैं बड़ा उसको गुनगुनाता था, एक तरह से बड़ा अच्छा लगता था वो शब्द ना, चुंजू का सबसे पहला वो श्लोक में आता है मुझे 마중와양 땡전데 땡저 개방한다라 유메데 대제 신뢰사 모한다라면 랑이 일로 공정이 됐어. 개와 공정 다게 대비셔. 대다 그냥 지금 봐봐 개방이면 지대 때다 좀 앞에 बल्कि वाह वाह बोल बात है वाकई में। तो देखिए जो समाज हमारे संसार की जो बातें होती है ना, उससे हटकर धर्म में देखिए ना, कहते हैं कौन से मजू में कहते हैं इससे पहले किसी ने कहा ना, ऐसी बात तो मेरे पास है नहीं, कहते हैं नहीं बात तो जो आज तक किसी ने नहीं कहा। आमतौर पर हम लोग ये बोलते हैं ना, जो किसी ने बोला वही मैं बोलूंगा बोला। अब फिल्म वाले बोलते हैं ये जो मेरे फिल्म आने वाले वो दूसरों से हटके बोलते हैं, आज तो जो नहीं है ऐसी फिल्म। हाँ हो भी सकता है, ठीक है, मगर फिर भी ना, तो इसमें ये कहा गया है पहले किसी ने नहीं कहा, ऐसे कोई मेरे पास नहीं कहते हैं ना शब्द में ना अर्थ में। मुझे मौजूद जो मैं ऐसा मैंने नहीं कहा गया था यहाँ, जो आज तक किसी ने नहीं कहा। दिमचो खेमा डाला व्याकरण की दृष्टि से मेरे पास ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं जो किसी के मतलब किसी ने ऐसे कोई व्याकरण की दृष्टि से ना कहे ना लिखे हुए ऐसे। शेंद्र संभव डाला में स्वीकार कर रहे हैं ना, मेरे में कोई ऐसे सद्भावना कहते हैं कि लाभ हो, किसी ने ऐसा ना सोचा हो, ऐसा विचार किसी ने ना किया हो, ऐसे भावना ना की, ऐसा सोच ना, ऐसे नियत ना रखी हो, ऐसा भी नहीं कहते हैं। रंग ये लोग कहते, मैंने तो ये अध्ययन, ये लिखना, ये रचना करना मात्र मैं स्वयं को देकर कर रहा हूँ। रंग ये लोग रंग कितने अच्छे। अब संस्कृत मुझे नहीं आता है, फिर आप देखिए मुझे संस्कृत वाक्य में अंग्रेजी नहीं आता है, दो भाषाएं, मगर फिर भी ना कुछ कुछ शब्द ऐसे कि आप जोड़ सकते हैं, भले हमें ना आए। अपने बौद्धिक भाषा बोटी में जो है उस शब्द को लेकर फिर वो संस्कृत जो मूल शब्द उसको जोड़ के अंग्रेजी शब्द को जोड़ के देखिए आप, जरूर ये जरूर देखिएगा। तो ज्यादा तो नहीं बोल रहा मैं इंग्लिश में वो बच्चों ने पढ़ा है ना, तो मैं इनको याद दिलाने के लिए वो इंग्लिश का वो चलो बाद में बता देना है ना। तो देखिए रंग ये लोग मुझे कहते हैं, रंग मतलब मेरे अले नहीं अले रंगी स्वयं घूमचर खुद भावना अभ्यास करने के लिए, अपने आदत में डालने के लिए। गोम मतलब आदत में डालना, एक तो होता है सोच में डालना, अब ये होता है आदत में डालना। अब सुबह सवेरे उठते हो, दिक्कत होगी आपको, मगर वो आदत में डाल रहे हो, आप आदत में डाल रहे हो। गाड़ी पकड़नी है, जहाज पकड़ना है, सुबह सवेरे उठता है, उसमें इसमें अंतर है ना। देखिए रंग ये लगुम से नित्यम इनमें रचना इसलिए कर रहा हूँ। फिर अगला श्लोक ये कहते हैं गेवा गुमसे ताकि तेविशु, गलत नियत तो नहीं कहते मैंने, फिर भी नियत तो मेरा हो सकता है थोड़ा बहुत साफ हो, भले ही कोई करुणा नहीं, फिर भी अच्छाई की दृष्टि से गेवा गुमसे ताकि, भले आप चुंजू की जो पुस्तक है उसको कोई पोथी सोचकर मूर्ति के साथ तो नहीं रखोगे, रखना जरूरी भी नहीं है, ये शास्त्र है तो जरूरी भी नहीं है, मगर फिर भी बाकी किताबों के साथ में रखेंगे भी तो थोड़ा उसमें से अलग सर देखेंगे ना आप, जैसे भी हो कि ये खास है। जैसा महाकवि राष्ट्र कवि हरिवंश बच्चन जी कहते हैं कि उनके पर इतने सारी किताबें पुस्तकें हैं, अपने आत्मकथा में कहते हैं कुछ पुस्तकें उन्होंने अलग सर का कहते हैं,
जिसमें गीता, रामायण, कुरान, बुद्ध के धम्मपद, ऐसे कुछ किताबें अलग से रखी हैं। वो इसलिए, अब कभी कविता है अपने आप में ये, मगर इसमें इतने कितने अर्थ है, कहते हैं इसलिए अलग से रखा है, कहीं आग लग जाए तो कम से कम इतने में बाहर निकाल के ले जाऊं। ऐसा होगा नहीं, फिर भी देखिए ना। हाँ, तो देखिए गेवा कुमचिर जो पहले जो सोचा, ये अपने आप में एक पुण्य बन गया। जो कुछ इससे पहले कहा था ना, आपके सोच जो है वो वही तो पुण्य है, ऐसा सोच रखना। मैं खुद को सुधारने के लिए जो कि अब आदत डाल रहा हूं, ये सोच ही पुण्य है। हाँ, वही सोच जो कि गेवा थे, वही सोच जो कि आपको बुद्ध धर्म संघ की ओर ले जा रहे हैं। भले आप बौद्ध ना हो, तब भी जो कि अरे बुद्ध को मानने के लिए बौद्ध होना जरूरी थोड़ी है। किसी भी धर्म को मानने के लिए हम बौद्ध है, मतलब जरूरी थोड़ी है कि हम किसी और धर्म को मानने के लिए उस धर्म में दीक्षा लेना जरूरी थोड़ी है। हाँ, तो ऐसे करके देखिए, तेदा की रेशी फिग्यूल कहते हैं। इस सोच से, इस नियत से, हाँ, रेशी फिग्यूला, हाँ 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 हाँ, तो अब ऐसे सब किताब था मेरे, मतलब मुझे, मैंने बोला अंग्रेजी नहीं आता है, फिर कहाँ गया? अच्छा, हाँ यहाँ आ गया। हाँ, तो इंग्लिश में मैं हाँ पढ़ लो। आपको याद दिला हाँ दूं। ये हमने जब स्टार्टिंग में भी जब ओरिएंटेशन जी, कराया हाँ, था, हाँ, उस समय भी हमने रिपीट करा था, याद है ना? इनिशियल हाँ यहाँ से हाँ, यहाँ से, हाँ हाँ। There is nothing here that has not been explained before, and I have no skill in the art of rhetoric. Therefore, lacking any intention to benefit others, I write this in order to acquaint it to my mind. For इसके आगे भी बोलूं? हाँ बोलो बोले। For due to acquaintance with what is wholesome, the force of my faith may for a short while increase because of these words. If, however, these words are seen by others, equal in fortune to myself, it may be meaningful for them. तो हो गया ना आपका? हाँ, जैसे मैं समझ जी। हाँ, तो इसलिए देखिए, तेता की जो रेशी फिग्यूला, रेशी, मेरी इस सोच से जो इतने सारे लोग बैठे, मान लिया आपके सामने 10 लोग बैठे हैं, आप अकेले बोल रहे हो तो 10 लोग सुन रहे हैं, तो एक साथ सुन रहे हैं, रेशी फिग्यूला। मतलब एक ही समय में जिस दुकानदार किसी चीज को, किसी एक को अगर बेचते हैं सामान, तो लाइन में बैठना पड़ता है ना, एक साथ तो किसी एक को देने सबके हाथ में तो पहुंचना नहीं है। हाँ, यहाँ तो मात्र एक को बोलने सब एक साथ सुन रहे हो, तो पुण्य का, धर्म का इतना प्रभाव कहते हैं कि एक साथ मिल रहा है, हम एक साथ सुन रहे हैं। हाँ, तो इसलिए भले मेरे पहुंच ना हो ऊपर तक, नहीं पहुंच पाता, मात्र मेरे अपने जैसे यार दोस्त को तो मैं कम से कम मतलब शेयर कर सकता हूँ इसका। देखिए, भले किसी बड़ों को ना सही, तादा क्या banyak bahasa क्या बा sudah sunam jenale ये जाओ या ना, ये जाओ या ना, अले वहाँ जाओ जमा चीज चेस्टे ले, वो तंग रंग दा जोशी के पास आले, हाँ, तेरे चेस्टे ना पाले, हाँ, उनको लाभ हो रहा है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। अब देखिएगा, हाँ, तो उनको ऐसे थे, उनको लगेगा इसमें कुछ मतलब है भाई। कई लोग बताते हैं, हमारे जो बौद्ध है उसकी बात नहीं कर रहा, शायद मेरे ख्याल से महाकवि हुए थे दिनकर जी, उन्होंने भी शायद बताया है कि महात्मा गांधी जी के जो आचरण है उस दृष्टि से कि बोधिचय अवतार से प्रभावित हुआ है गांधी जी। ये किसी ने पता नहीं है,
विषय पर के महात्मा गांधी जी का तो गीता से साफ साफ बात है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात होती है ना, जैसे अम्बेडकर जी का भगवान बुद्ध के एक आ जाता है उनके साथ। देखिए बुद्ध के चाहे देखिए संविधान के हमारे निर्माता बुद्ध के, देखिए बुद्ध और उनके धर्म के नाम से जो जैसे बाबा साहब की जिस तरह से पुस्तक है, कितनी बड़ी बात है। हाँ, मैंने ऐसे पूरा अध्ययन तो हमने क्या कर पाना, आप पता नहीं, मैं आप मेरे से मतलब बहुत कम उम्र के आप लोग, इसलिए बता दूं, बड़ा हैरान सा होता है। जैसे अम्बेडकर जी का ना, अब उन्होंने जैसे राम के नाम बार बार लेते हैं एक आलोचक दृष्टि से, मान लीजिए आप। अब शुरू में लोगों को लगेगा राम तो भगवान है, भगवान के खिलाफ में जैसे, अब पूरी बात तो हमें पता नहीं है ना, जब हमने पूरे उसका शोध नहीं किया, अध्ययन तो हमारे नहीं हुए, तो मात्र पढ़ने तक सीमित है। अब शायद शिव या आदि पर इतना वो नहीं है जितने राम पर है, क्यों नहीं? तो मैं इस ज़्यादा तो नहीं बोलना होता, पर वो मेरी जिम्मेवारी है, तो अगर गलती हो तो जैसे राम जन्मभूमि की बात हुई, बताते ऐसे है ना कि शुरू से चला था, लेकिन ये तब ये कहते हैं कि निर्णय लिया गया कि हमें राम को एक व्यक्ति के रूप में पेश करना पड़ेगा। भगवान के रूप में पेश करें तो हमारा काम नहीं बनेगा, संविधान में वो स्थान नहीं है, इसलिए राम को व्यक्ति के रूप में, राजा के रूप में पेश कर देते हैं, तभी हमारा काम बनेगा, हम जीत सकते हैं। तो बाबा साहब की सोच देखिए ना, उन्होंने सबसे पहले व्यक्ति को उन्होंने पेश किया। हाँ, तो अब खैर मैं उस पर ना जाऊं, वो आधा दूर से बात हो जाएगी। मतलब एक सोचने का विषय बनता है वो, जैसे भी कहिए आप। हाँ, सोचने का विषय बहुत बड़े सोचने का विषय बनता है। खैर, तो भगवान बुद्ध के देखिए, बुद्ध के देखिए, खैर आप उस विषय में ना जाओ, बहुत ही उनकी जो पुस्तक है वो वाकई में बौद्ध धर्म दर्शन पर एक शोध में तो सबसे महत्वपूर्ण एक पुस्तक है। हाँ, और ये जो हमारे व्याख्याएं होते हैं ना, उससे बढ़कर है शोध का। असल में वो एक पता नहीं उनको समय कैसा मिला हुआ सोच के। हाँ, जिंदगी का समय तो हमारे भी जितने उतने उनका भी था ना, और इतने संघर्ष के बीच में से बौद्ध धर्म दर्शन का अध्ययन करने को कैसे मिला, जैसे वही गांधी जी के साथ देखिए। हाँ, राम के नाम सबसे ज्यादा गांधी ने लिया, एक तरह से बात करो। हाँ, राम के भक्त सबसे बड़े थे, कह सकते हैं। हाँ, हम तो बच्चे थे उस जमाने में, जब अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद का ये सब हुआ तो हम बनारस से आ रहे थे, उन्हें उसी महीने में जैसे अयोध्या पहुंचे, रेल में कुछ लोग आ गए अंदर राम भक्त के, तो बातचीत हुई, हमें लाल पीला मैंने देखा, तो भक्त कहने लगे हम राम भक्त है, आप लोग जो कि बुद्ध भक्त है, हमें एक है वगैरह, ऐसे बातें हुई, तो बातचीत होती रही। तो हमने कहा, तो गांधी जी थोड़ी सी आलोचना कर रहे थे, तो हमने कहा राम के भक्त तो गांधी जी तो असली तो वो थे कि भाई गोली लगने पर उन्होंने राम का नाम लिया। तो कहने ये तो सच है। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बावजूद इसके भी बड़े बड़े जो विद्वान है वो कहते हैं गांधी जी के आचरण की दृष्टि से देखा जाए तो बोधिसत्व अवतार से प्रभावित हुए जैसे। हाँ, तो अब दलाई लामा जी का तो मूल उनके ग्रंथ है बोधिसत्व अवतार। नोबेल शांति पुरस्कार के उनके उस संस्था में भी, वहाँ संग्रहालय में भी दलाई लामा जी के द्वारा जो कि वहाँ चुंजू के बोधिसत्व अवतार का जो पुस्तक है वहाँ रखा गया है। हाँ, तो बोधिसत्व अवतार वाकई में ये जीवन की किसी भी दिशा में आपका काम, और ये शास्त्र है, कितनी बड़ी बात है। शास्त्र के लिए आपको किसी गुरु से
दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है पढ़ने के लिए, कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं आप, साथ चलते ले जाइए इसे, अध्ययन कीजिए इसका। हाँ, और कई ऐसे और एक जैसे दलाई लामा जब बार-बार कहते हैं ना, एक श्लोक इसमें ऐसे हैं, यदि अगर कुछ करने से कोई काम बनता है, तो उसमें तो परेशान होने के मतलब ही नहीं है। यदि कोई अगर काम परेशान होने से नहीं बनता है, तो परेशान होने से लाभ क्या कहते हैं? देखिए, बस एक श्लोक में, हाँ, भले ये दर्शन ना सही पर आचरण तो है। हाँ, ऐसे आचरण जो दर्शन लेके आता है वो, इसमें दर्शन का विषय हुआ वो आचरण लेके आएगा, आचरण का विषय होगा वो दर्शन लेके आएगा, और दोनों ही भावना पे उतरेगा। भाई भावना तो सब कुछ है, भावना ही तो है। हाँ, परेशान है हम सब, मैं परेशान हूँ, शायद आप तो इतने परेशान नहीं होंगे, तो बाकी जितने हम सब ना एक आमतौर पर परेशान है आज के ज़माने में, ख़ास करके ना। हाँ, परेशान हो जाता हूँ, मैं जानता हूँ, कभी यहाँ दर्द देता है, कभी यहाँ दर्द दे रहा है छाती में, छाती तक, हाँ, साँसें रुक जाती है। हाँ, हाँ, हाथ-पैर काँपने लगता है। हाँ, इतने परेशान भाई, और परेशान हैं हम अपने लोगों से, अपनों से, परेशान है खुद से, परेशान है अपने से, परेशान है अपनों से। अब बताइए आप? हाँ, दुनिया से परेशान नहीं है, अपने से परेशान है, अपनों से परेशान है। यही तो 2 है जो हम हैं, जो मैं हूँ। अब क्या फिर तो बड़ा मुश्किल हो गई। हाँ, देखिए ना, हाँ, तो कैसे? अब हम 1000 साल तक तो जीने वाले तो है नहीं, समय तो हमारे पास ज़्यादा से 100 साल ही है। एक गुरुजी ने कहा है, 공tantembedroom में, कहते हैं हमने छिदु माटी निशुथल कि अभ्यास करने के सोच ही नहीं आया, 20 साल ऐसे बीत गए कहते हैं। छेदु वाला निशुथल, अब अभ्यास करूंगा सोचते सोचते फिर 20 साल बीत गए कहते हैं। हाँ, माजूम से जुड़ा से, अब हुआ नहीं बोलते, 10 साल बीत गए, 50 तो यहाँ चला गया बोलते हैं। मुझसे तोंगबा से नाम रही कि मैं जीवनी क्या लिखूं अपने बारे में, क्या बताऊं, कि शून्य कहते खाली। हाँ, तो मान लीजिए 20 साल तक जवान है, बच्चे हैं सब, मान लीजिए आप, 20 साल से लेकर 40 साल तक का समय बहुत अच्छा समय है। तो वो समय तो इसमें बीत गया बोलते, मतलब याद ही नहीं आया कहते मुझे अभ्यास करने का। उसके बाद फिर 20 साल, 40 से 60 भी चलो ठीक है। हाँ, वो भी तो इसमें बीत गया कहते हैं कि मैंने करना है बोलते बोलते। अब 60 के से 70 साल का वो भी समझ लो ठीक है बोलते, फिर भी चलो, वो तो इसमें बीत गया बोल रहे हैं कि मेरे से हुआ नहीं बोलकर। हाँ, पहला बीता याद ही नहीं आया, दूसरा बीता 20 साल कि करना सोचते हुए उम्मीद में, और तीसरा 10 साल बीता अब तो शिकायत में। हाँ, तो देखिए, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, मगर फिर भी उदाहरण के तौर पर रखा जाए तो पूरा बैठता है वो। हाँ, तो धर्म देखिए, धार्मिक विषय में माना, क्या धार्मिक विषय नहीं है बताइए आप? राजनीति भी तो धार्मिक विषय है, अर्थव्यवस्था में तो धार्मिक विषय है, कौन सा धार्मिक विषय नहीं है? जो जिससे हम कहते हैं ना धर्म, वो तो विधि विधान की बात होती है, वास्तव में तो धर्म तो नहीं है ना। धर्म तो सारे विषय धर्म है, चाहे पुण्य के हो पाप के हो, सारे विषय धर्म विषय, धार्मिक विषय है। हाँ, हाँ,
तो मतलब ये डराने के लिए नहीं है। परम पावन कहते हैं कब मरेगा सोचते रहना छिवा मिता। ये तो जीवन में एक बार ही आना है। हाँ, और जो जीवन में एक बार ही आना है वही हम रोज सोच रहे हैं। जो अभ्यास करते हैं, योगी होते हैं, संत होते हैं या साधक होते हैं, वो तो कहते हैं कि कम से कम जैसे छम में कोई बैठे हो ना, जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो चलो कोई बात नहीं, दिन में 3 बार सोच लो। जैसे आप यहाँ से निकलोगे, घर जाओगे, अपने अपने स्कूल कॉलेज जहाँ भी जाओगे, तो वहां तो रोज सोचना जरूरी नहीं है। ये तो सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, तो बताते कितनी बड़ी बात है। दलाई लामा जी बताते हैं वो जो मरना एक बार ही जीवन में है, पर वही आप रोज क्यों सोच रहे हो? वो तो एक बार ही आए। हाँ, तो रोज जो सोचना है वो ये है, जो समय जो बीत रहा है, हाथ से समय जो निकल जा रहा है, आज के दिन तो अब निकलते जा रहे हैं ना। वो 1 डेढ़ 2 घंटा ही रह गया, 3 एक घंटा रह गया, उसके बाद तो अगला दिन है। तो ये समय जो निकलते जा वो तो हमें सोचना पड़ेगा। हाँ, फिर ये धर्म पुस्तक, धर्म के नाम से तो है, धर्म पुस्तक है। तो धार्मिक पुस्तक जो है, ये सारे धर्म आपसे कभी भी आपकी उम्र नहीं पूछेगी, कभी नहीं पूछते हैं कि आप क्या है, क्या नहीं है, क्या उम्र है, कहाँ की हो, पूछेगा नहीं पूछेगा। कोई भी धर्म देखिए ना। हाँ, और विषय पर अभी भगवान बुद्ध के, तथागत के वचन से देखिए, बौद्ध धर्म दर्शन के अंतर्गत, हाँ, मैं तो ऐसा मानता हूँ, मेरे जानकारी सीमित है, मगर फिर भी सबसे पहला धर्म हुआ हिंदू। हाँ, इतिहास की दृष्टि से, फिर हुए जैन, बौद्ध, इस तरह से, फिर ईसाई, इस्लाम, जैन, सिख तक देखिए आप। तो सबसे पहले हिंदू। हाँ, उससे पहले नहीं था। हाँ, अच्छे आचरण था, मतलब बहुत अच्छा विधि विधान, कोई शक नहीं। रहन सहन खान बहुत अच्छे, संतुष्टि, मन में एक शांति। हाँ, मगर उस शांति में से एक शून्यता या करुणा को निकालना, हाँ, तो बुद्ध के आने से प्रतिसमुत्पात, करुणा, मैत्री, हाँ, आत्मशून्य, हाँ, देखिए, हाँ, तो सबसे बड़ी बात, अब देखिए आज इतना विकास हो रहा है, समाज में विकास हो रहा है, देश में विकास हो रहा है, समाज में विकास नहीं, देश में हो रहा है, शहर में विकास हो रहा है। हाँ, मगर जहां तक समाज की बात है ना जी, समाज विकास नहीं हो रहा है, यहां फंसे हैं। हाँ, आपके हमारे अपने समाज है लद्दाख का, कोई भी विषय ले जाए आप, वो सामाजिक विषय है ना, मान लीजिए, तो समाज हर स्टेट में देखिए, लद्दाख में देखिए, यूपी में देखिए, बिहार में देखिए, कहीं भी, पंजाब में, समाज का जब बात होती ना, तो फिर, तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि समाज में अगर सुधार लाना है, विकास लानी है, तो विकास से नहीं, समाज में सुधार लाना तो परिवर्तन से ही संभव है। इसलिए भगवान बुद्ध के प्रथम जो बुद्ध के वचन थे ना, 4 आर्य सत्य पर, सारनाथ में, नाम ही यही है ना, शिशु खोलो, धर्म चक्र परिवर्तन, याद रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन। समाज सुधरेगा परिवर्तन से ही, विकास नहीं हुआ। हाँ, ज्यादा होना है। हाँ हाँ, ठीक है, तो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ।
तो इसलिए देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कोई राजनीति आदि के विषय नहीं, ठीक है ना जी? हाँ, या कोई एक हाल-फिलहाल का कोई विषय नहीं, समाज। अब बुद्ध के वचन क्या था? परिवर्तन लाने का वो जो तरीका होता है ना, जिस तरह से माध्यम क्या है? 4 सत्य। दुःख, दुःख समुदाय, दुःख निरोधा, दुःख निरोध मार्ग। हाँ, कि दुःख है, ठीक है जी? और दुःख को हम त्याग नहीं सकते हैं। दुःख को त्याग नहीं सकते हैं, पर क्या त्याग सकते हैं? जो दुःख के जो कारण है, कर्म है, उसे त्याग सकते हो आप। दूसरा हो गया, उसे त्यागने पर छूट के भी तो क्या फ़ायदा है? दुःख से अलग होने पर भी तो कुछ मिलना तो चाहिए ना? हाँ, तो वो ज्ञान है। ज्ञान ना मिले, मात्र दुःख से छुटकारा मिले तो क्या करना? वो तो सुनसान सी जगह में बैठ गए वाली बात है। तो उस गुण को समझना, दुःख निरोधा और दुःख निरोधा मार्ग है। इस समय जो आप अध्ययन कर रहे हैं ना, जो कुछ सुन रहे हो, सीख रहे हो, ये अध्ययन देखिए, गिशे लक्तुल्ला यहाँ उनके माध्यम से समय-समय पर जो भी होते विद्वान लोग, खासकर जैसे इस समय गिशे लक्तुल्ला, जैसा आप बता रहे थे कि गिशे लक्तुल्ला जो कि एक तरह के जी बोल रहे हैं। Kasama tujisenju, Senhor deixa nas gonçosa. जैसे मैं शुरू में आपको बता रहा था ना कि जहाँ मैं तिब्बत हाउस गया था, गेशला से जब मैं पहली बार मिला था, गेशला का जो इंग्लिश जब सुनने को पड़ा, तो मैं तिब्बत हाउस काफ़ी समय इसलिए गया था कि मैं फिलॉसफी को चलो जान पाऊँ नहीं पाऊँ, पर कम से कम इंग्लिश तो जान पाऊँगा। तो वैसे ही जब लिंगुइस्टिक जब अभी इंग्लिश सुनते हैं ना, तो जो शब्द प्रयोग करते हैं लिंगुइस्टिक, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों में मुझे भी अभी शक है कि आप लोगों को थोड़ा गंभीर पड़ा होगा। ना, देखिए, ये तो मैं आपसे समय लेकर बोलना चाहूँगा, ये सफ़ेद झूठ है आपके। वाक़ई में, मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोग असली में पढ़े लिखे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, देखिए। क्योंकि आप किसी एक स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, वो अलग से है। हाँ, हाँ, तो हम अपने आप को आपके बराबर नहीं कर सकते। किस्मत थोड़ी बहुत हमारी अच्छी होती है, वो दूसरी बात है, पर कर्म की दृष्टि से देखिए आपके, ये सच है। और जहाँ तक मेरी बात है, अब मेरे हिंदी टूटी-फूटी ये फ़िल्मी हिंदी है, सच बोले तो। और दूसरी बात, मैं मेरे बारे में मैं ही जानूँ, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के समय में सारे पढ़े लिखे हैं, पहली बात तो, ठीक है? मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, पर मैं अनपढ़ पढ़ा लिखा हूँ। हाँ, ये सच है। जब लिखने की बात होती है ना, तब नहीं होता है हमसे, ये सच है। इसलिए आज पे आईपॉड के आईफ़ोन वगैरह रखना पड़ता है, इसलिए ना वो हमारे काम का आता है, आपको उसकी उतनी ज़रूरत नहीं होती है, सच बोले तो। तो ऐसे करके चाहे अंग्रेज़ी हो, हिंदी हो, किसी भी भाषा में आप लोग तो इतने बड़े-बड़े ऐसे संस्थाओं में पढ़ते-लिखते हैं, ये तो आपके बड़ापन है। आपने भी कहा, आप भी स्वयं वहीं से निकले हैं, यहाँ तक पहुँचे, देखिए ना, हम नहीं कर सकते ये काम। तो भाषा पर हो, चाहे किसी विषय पर ना, तो आप लोग वाक़ई में ना, तो अपने आप को आप ऐसा कहा है, जब दूसरों को देखते हो ना, तो सबसे पहले उनके गुण देख के, उसके बाद उसके दोष देखने का। स्वयं जब अपने पर देखोगे, सबसे पहले अपना दोष देखिए, उसके बाद अपने गुण देखने का। जैसे लद्दाखी में बोलते हैं ना, "पोस्पा मा खाक्सिनो पाले", जैसे ना "फोसो दा पोस्पा सुसुइनो को यांको", आले "फोसो जना यार चंग रंग हास्य वजह से जना ते फोसुइनो पाले", तब पोस्पा जना चिरंग के शेष ते पोस्पा पाले, ये ना पा ते संग फिर आप जैसे अभी तहसीलदार है, आप लोग जो भी हैं, तो वो आपके वाक़ई में ख़ास करके आज के आधुनिक युग में, आज की दुनिया में आपकी पूरी तरह से पकड़ है इसका, है ना? तो ये आप ज़रूर याद रखिए, और अ, बाकी कहीं गलती-वलती हो तो माफ़ कीजिएगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे आप आए, समय दिया, हम सबके बीच में आप बैठे, और रात का काफ़ी समय हो गया, फिर भी आप बैठे, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और सच बताऊँ तो
हिंदी और इंग्लिश ऐसे कमजोर हैं हम, सच बताऊं तो मसला आपसे बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत प्रभावित होते हैं मसला। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। और हमारे तरफ से मसला आपको छोटा सा भेज है। मैं ये ले जाता हूँ साथ में। जी धन्यवाद धन्यवाद, फिर से बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ये नेशनल म्यूजियम का टेक्निक है, ये कोई 8वीं 10वीं शताब्दी का कोई उसका। अभी मैं कल परसों वहाँ पे गया था अपने क्या नाम फुटांग साहब जो जहाँ आप लोग संकर में जी वहाँ पे रखे हुए थे नोटल में ना। ये रिट्रीट की प्रेयर बुक्स नोटबुक किताब है तुझसे मैं ले जाऊँ ना इसे। हाँ बहुत अच्छा है। तो ये क्या है आपका बहुत ही थोड़ा कमर लिखा है ये इसमें ठीक है बस ठीक है फिर सुबह झलचे सा अच्छा चल क्या बोल हाँ अच्छा मैंने झलच अच्छे बंदा देते हैं कैसा है तुझसे आप अपने नोट में ले फोटो से क्या कैसा है 감사해. 감사해. 집에 야주네 감사해. 틀래. 야주네. 진짜. 와. 아니. 감사해. 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 진짜 감사해. 자, ठीक है। 감사. कुर्सी दे देता हूँ। अरे ठीक होगा। आप साथ बैठे हैं कुर्सी में ठीक है। कुर्सी के पीछे वाला अच्छा ठीक है ना।